Hello students. So now in this video we'll be solving 2024 compartment, or we can say the supplementary जो exam हुआ था of 2024. So we'll be solving this paper. So let's start. So the first question is, what does a modem do at the sender's end? तो सेंडर के एंड पे मॉडेम क्या करता है? तो बहुत आसान है आपका, जब सेंडर है वो कंप्यूटर के थ्रू सेंड करेगा डाटा, तो कंप्यूटर हरदम डिजिटल डाटा सेंड करता है. सो इफ यू सू देयर आर ओनली टू ऑप्शंस वेयर इन द डाटा इज बीइंग सेंट इन द फॉर्मेट ऑफ योर डिजिटल डाटा, एंड व्हाट आर दोज टू ऑप्शंस? So if you see here, we have this one where it is sending our digital data, and the C1 which is sending again our digital data. लेकिन यहाँ पे ये digital data को convert कर रहा है optical signal में, लेकिन जो ये वाला है ये convert कर रहा है analog signal में. तो जो modem होता है that converts digital data to analog and vice versa. So the correct option is your B, that is it converts your digital data into analog signals. So let us move to the next question. So the second question is, which out of the following cannot be included in a digital footprint? ध्यान से देखना कि जब भी cannot हो, not हो, तो जिसका आंसर no आ रहा है ना, तो वो आपका करेक्ट आंसर है. So submitting the form online, yes, वो डिजिटल फुटप्रिंट है. सर्चिंग फॉर योर फ्रेंड्स एड्रेस ऑनलाइन, yes, that is again a digital footprint. Walking on the beach, no, this is not a digital footprint, so this is the correct answer. Okay, D भी देख लेते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग, yes, this is also a digital footprint. So no आंसर आया walking on the beach, तो correct answer is walking on the beach. Next question is, Emma is a student working on her research project. She finds a well-written paragraph on the internet that preferably contains the concept that she wants to include in her project. She copies and pastes the paragraph as it is into her research paper. So उसने नेट से कॉपी किया पैराग्राफ और अपने रिसर्च पेपर में उसको as it is paste कर दिया. Her research paper did not get selected due to plagiarism. What is the one way out of the following that Emma could have followed to avoid plagiarism in this case? तो Emma क्या कर सकती थी ताकि वो plagiarism से बच सके? Now A is copying the content from a book in her college library. No, that is also a plagiarism because वो उसका खुद का research work नहीं है. Then is B, rewriting the paragraph in her own words and citing the original source. Yes, this she could have done. कि जो पैराग्राफ उसने देखा नेट से, उसको वो रीराइट कर सकती थी अपने वर्ड्स के अंदर, और ये साइट कर सकती थी कि इस पर्टिकुलर सोर्स से मैंने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के कॉन्सेप्ट को लिया है. And C is asking her friends for information and using it in her research paper without mentioning her friends' input. No, that is also wrong. Then is posting the paper on her college website. This is also wrong. So the correct answer is B, that is rewriting the paragraph in her own words and citing the original source. Next question. What will be the output of the following query? Select mod. अब mod क्या करता है? Remainder find out करता है. Okay, 5,15. Now 5,15, that means we are dividing 5 by 15, which is impossible. So the correct output will be 5 only. Now if you see this, we are dividing 5 by 15, which is impossible. We cannot divide 5 by 15. Even वो point में नहीं लेके आना आपको क्वेश्चन को. So you get back the 5. तो जब भी आपका सेकेंड आर्ग्यूमेंट अगर बड़ा होता है मॉड के केसेस में, ये मैं पहली वीडियोस में बता चुका हूं कि आपका अगर सेकेंड आर्ग्यूमेंट बड़ा है मॉड के केस में, सो द आंसर विल बी द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, दैट इज 5 ओनली. अगर मैं बोलूं सेलेक्ट मॉड 17,18, तो आंसर इज 17. इफ आई से सेलेक्ट मॉड 3,9, आंसर इज 3. So whenever the second argument is bigger than the first argument, तो वो divide नहीं कर पाएगा, तो first argument will be the only answer, क्योंकि वही remainder बन जाएगा. So the correct answer is the D1, that is 5. Okay, next question is, which of the following aggregate functions returns the average of the values in a specified column of a MySQL table? So A is AVG. Yes, this is correct. Average कोई function होता ही नहीं है MySQL में, ना mean ना total. So we have sum, AVG, max, min, count. So these are the 5 aggregate functions, and AVG is the correct one. Okay, so next question is, for how long does a patent typically protect an invention? So it is basically for 20 years. Next question is, in Pandas library of Python, a one-dimensional array containing a sequence of values of a data type is known as. Now one-dimensional की बात करते हैं तो it is basically known as your series. Okay, next question. Now in MySQL returns today's date. No. Today's date and time, today's date and current time. Yes, that can be possible. And C दिया हुआ है systems date and time.
अब एक्चुअल में नाउ जो है वो उसको पता ही नहीं होता कि आज की डेट क्या है, वो कंप्यूटर की डेट फेच करता है कि कंप्यूटर की क्या डेट और टाइम है और वो उसको रिटर्न करता है. सो द करेक्ट आंसर शुड बी सिस्टम्स डेट एंड टाइम. अगर सिस्टम की डेट चेंज्ड है तो वो वही फेच करके डिस्प्ले करेगा नाउ. सो द बेस्ट आंसर इज योर सिस्टम्स डेट एंड टाइम. नेम ऑफ एक्टिव डेटाबेस तो गलत है बिल्कुल. सो इट नाउ डिस्प्लेस द सिस्टम्स डेट एंड टाइम. Okay, the next question is what will be the output of the following query. Now subster, mid और substring ये तीन ऐसे फंक्शन हैं जो सेम काम करते हैं, नाम अलग अलग हैं. तो अब अगर हम देखते हैं सबस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण, देन कॉमा करके सेकेंड आर्ग्यूमेंट 2 है और थर्ड आर्ग्यूमेंट 4 है. नाउ सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो 2 है उसका मतलब है कि उस पोजीशन से शुरू करना है, और जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है दैट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड कैरेक्टर एंड सेकेंड कैरेक्टर इज W. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम W एंड फेच 4 कैरेक्टर्स एंड द करेक्ट आंसर शुड बी WACH, दैट इज द B1. Okay, now the next question is what will be the output of the following Python code. Import pandas as PD, ठीक है. dd is equal to, now we have created our dictionary jan feb mar apr and then उस डिक्शनरी को यूज करके हमने सीरीज क्रिएट किया हुआ है. सो लेट अस ट्राई टू क्रिएट अ सीरीज. तो अब ये ध्यान रखना कि जो इसमें कीज हैं सीरीज के अंदर दैट इज जैन फेब मार और apr, जो कीज हैं डिक्शनरी की, जो कीज हैं वो हमारी इंडेक्सेस बनेंगे, और जो डिक्शनरी के अंदर हमारी वैल्यूज हैं वो हमारी डाटा वैल्यूज बनेंगे हमारे सीरीज के अंदर, अगर हम डिक्शनरी के थ्रू कोई सीरीज बनाते हैं तो द सीरीज दैट विल बी क्रिएटेड विल बी समथिंग लाइक जैन 31 फेब 28 मार MAR 31 एंड APR 30. So the correct option is the A1. So that is the correct answer is Jan 31 Feb 28 March MAR 31 APR 30. डी टाइप को आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन है कि आपका एक्चुअल में डाटा क्या रिटर्न करेगा. Okay, the next question is with respect to databases, a row in a relation is also known as your n, that is your tuple. तो हम रो को हम tuple बोलते हैं, कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं, टेबल को हम लोग रिलेशन बोलते हैं, और जो हमारा डोमेन है दैट इज बेसिकली द रूल्स डिफाइंड ऑन द कॉलम. सो द करेक्ट आंसर इज योर टपल. ओके, तो रो को हम क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले फर्स्ट 3 रोज ऑफ ए डाटा फ्रेम DF. सो अगर हम ए की बात करते हैं, df.head आर्ग्यूमेंट नहीं मेंशन्ड है अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो दैट मीन्स इट विल डिस्प्ले फर्स्ट 5 रोज. ओके, सेकेंड इज df.header, हेडर कोई फंक्शन होता ही नहीं है. देन df.head ब्रैकेट में 3, यस दिस इज करेक्ट, सो दिस शुड बी द वन. अब बोलोगे डी भी तो df.head है सर, उसमें भी तो ब्रैकेट में 3 है, लेकिन पाइथन जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है. अगर आप सी में देखोगे h जो है वो स्मॉल लेटर में है और d के अंदर जो h है वो कैपिटल लेटर में है. सो द करेक्ट आंसर इज द C1, दैट इज df.head विद द स्मॉल लेटर्स एंड दैट इज पैरेंथेसिस में 3, दैट इज टॉप 3 रोज अगर हमें फेच करने हैं. तो अगर हम कुछ भी वैल्यू नहीं पास करते तो इट फेचेस द फर्स्ट 5 रोज ऑफ द डाटा फ्रेम और द सीरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विसेज इज यूज्ड फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग. तो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए हम लोग चैट यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग SQL क्वेरी. तो सेलेक्ट इंस्टर नॉलेज में वी आर फाइंडिंग आउट E. So what we want is we are going to find out E and there are 2 E's, you can see that. But जो first occurrence है उसकी पोजीशन रिटर्न करता है. पहला E जो है वो किस पोजीशन पे है, और MySQL में 0 का कॉन्सेप्ट नहीं होता, 1 से शुरू होता है. तो K is 1, N is 2, O is 3, W is 4, L is 5 and E is the 6th character. So the correct answer is your 6. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. अगेन नॉट आ गया है, ठीक है. तो ये हम सेंटेंसेस रीड करेंगे और जिसका आंसर नो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर. सो फर्स्ट इज नॉट अ फीचर ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. सो फर्स्ट इज इट कैन बी शेयर विद अदर्स विदाउट एनी लाइसेंसिंग बर्डन. यस, हम शेयर कर सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को किसी के साथ भी बिना किसी लाइसेंस के. Now second is it is same as free software. No, free software अलग है, open source software अलग होते हैं. C is it can be downloaded on multiple devices. Yes, we can download open source software on any device. D is its source code is available for free distribution. Yes, open source software का source code भी हमें available होता है. So the correct and the best answer is your B1, that is it is same as free software. Okay.
Now the next question is, what is a common symptom of extended use of digital device these days? तो अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक डिजिटल डिवाइसेस को इस्तेमाल करेंगे तो उसका क्या हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी. सो इम्प्रूव्ड आई साइट, देखो डिजिटल डिवाइस देखने से तो कभी आंख ठीक नहीं होगी, तो इम्प्रूव तो नहीं होगी. एनहेंस फिजिकल फिटनेस, नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता. आई स्ट्रेन, यस, दैट इज सी इज द करेक्ट वन. इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, नो. सो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आई स्ट्रेन. नेक्स्ट इज योर 17th क्वेश्चन, हैकिंग इज अ साइबर क्राइम. यस, हैकिंग इज अ साइबर क्राइम. अब रीजन देखते हैं. टू अवॉइड हैकिंग वन शुड नॉट शेयर द पासवर्ड विद एनीवन. यस, वी शुड नॉट शेयर द पासवर्ड विद एनीवन. नाउ अब assertion reasoning के क्वेश्चन, स्पेशली विद इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट, ध्यान रखना अगर दोनों assertion reasoning ट्रू हैं और दोनों एक ही टॉपिक की बात कर रहे हैं, हैकिंग दोनों, दैट मीन्स the best answer will be A, that is both assertion and reasoning are true and reason is the correct explanation for A. ओके, तो हरदम ये चीज को आप ध्यान रखना. सो दोनों हैकिंग की बात कर रहा है और दोनों ही ट्रू हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द pandas library in Python is primarily used for creating static, animated and interactive 2D plots of figures. No, pandas library इस्तेमाल नहीं होता हमारा प्लॉटिंग्स के लिए, फिगर्स के लिए. We use pandas library for data manipulation. Mainly it works with the data, but for the this 2D plots or figures we use matplotlib library. So assertion गलत है. Reason देखते हैं. Data visualization can be achieved with the help of variety of charts and plots. Yes, including static plots. Yes, animations and interactive visualization. Yes. तो data visualization हम इन सब चीज़ों से achieve कर सकते हैं. हाँ, बिल्कुल सही है. तो assertion is false and reason is true. तो correct answer is D. That is assertion is false but reason is true. Okay, let us move on to the next question. So ये हमारे MCQs यहाँ पे finish हो जाते हैं. अब यहाँ से हमारे subjective question start होते हैं. Now the subjective question के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, that is write one function each of the following network devices. First is modem and second is router. So modem का जो मेन काम होता है, शुरू में क्वेश्चन भी था इससे रिलेटेड, that is modem converts digital signal to analog and vice versa. और वो वाइस वर्सा तब होता है जब पहले टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रेवल करेगा, दूसरी जगह पहुंचेगा और दूसरी जगह पहुंचने के बाद वापस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और फिर कंप्यूटर को ट्रांसमिट कर देता है वापस. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ अ मॉडेम. देयर इज राउटर का क्या काम है. सो राउटर जो होता है, आपके घर पे भी लगा हुआ राउटर. सो राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स अ नेटवर्क विद इंटरनेट. सो हमारे नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, हमारा नेटवर्क का मतलब हो गया आपके घर में जितने डिवाइसेज हैं वो आपका एक नेटवर्क है. ठीक है. सो आपके नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए वी यूज अ राउटर. एंड राउटर का मेन काम होता है, वो आप जो भी उसको ट्रांसमिट करोगे डाटा, वो पहले उसको एनालाइज करेगा और फिर आपके आगे फर्दर डेस्टिनेशन को भेजेगा. ठीक है, आफ्टर डिसाइडिंग ऑन द बेस्ट रूट. नाउ और में इसमें क्वेश्चन है, राइट एनी वन एडवांटेज एंड एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी. तो एडवांटेज की बात करते हैं तो बस टोपोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव है. क्यों? उसमें सबसे कम हमें वायर लगता है, क्योंकि उसमें एक ही सिर्फ हमारी एक बस यूज होती है, एक सिंगल वायर होती है, उसी सिंगल वायर से बाकी नोड्स कनेक्टेड होते हैं. सो दैट इज वाई उसमें हमारा खर्चा कम होता है. इट इज कॉस्ट इफेक्टिव. ओके, वेरस जो डिसएडवांटेज है मेन आपका बस टोपोलॉजी का, वो है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. अगर आपकी बैकबोन फेल हो जाती है, बैकबोन मतलब जो एक सिंगल वायर हमारी है उसी को हम बैकबोन बोलते हैं. अगर एक सिंगल वायर जो बैकबोन है वो अगर फेल हो जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा और आपकी जो जितने भी नोड्स कनेक्टेड है वो सब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज these are the advantage and disadvantage of your bus topology. Okay, let us move to the next question. The next question is, the Python code written below has syntactical errors. तो इसमें कुछ गलतियां हैं. Rewrite the correct code and underline the corrections made. तो फर्स्ट लाइन देखते हैं, इंपोर्ट पांडास एस पी डी. ध्यान रखना कि मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो 2024 का जो मेन एग्जाम था उसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें भी यही क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन था. तो जब भी गलती ढूंढने की बात आती है तो 4 मिस्टेक आपको मिलेंगी. अगर आपने 2 मिस्टेक ढूंढी है, 2 और ढूंढो, 3 ढूंढी है तो 1 और ढूंढो. ठीक है, 4 मिस्टेक आपको मिलेंगी. सो फर्स्ट इज इंपोर्ट पांडास एस पी डी में पी स्मॉल लेटर में होना चाहिए क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है.
नेक्स्ट इज, अगर हम देखते हैं सेकंड हमारी स्टेटमेंट है कंट्रीज इज इक्वल टू, एंड वी व्हाट वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज. अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आप ध्यान से देखना, तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के अंदर इफ यू सी वी हैव स्टार्टेड विद अ स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि लिस्ट है तो लिस्ट बाद में बंद भी होनी चाहिए, लेकिन यहां बंद नहीं है, तो ये एक मिस्टेक यहां पे हमें मिल गई है, ये एक मिस्टेक मिल गई हमें, ठीक है. और इसके अंदर आई थिंक देयर इज नो मिस्टेक, तो एक तो ये हमारी मिस्टेक है. दूसरी मिस्टेक यहां पर आप देखोगे कि कॉलन होना चाहिए, की वैल्यू पेयर्स होने चाहिए, तो कॉलन हमारा यहां पे नहीं है, सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ मिस्टेक. सो इफ यू सी, एक तो कॉलन की गलती है, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट हमारा क्लोज नहीं हुआ है, तो हमारी 3 मिस्टेक तो हमें मिल गई है. नाउ फोर्थ मिस्टेक क्या है, अगर आप नेक्स्ट लाइन में देखें तो लिखा हुआ है df इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम कंट्री. अब कंट्री तो ऊपर डिक्लेयर ही नहीं है, डिक्लेयर क्या है, द डिक्लेयर्ड वर्ड इज बेसिकली द कंट्रीज, तो ये होना चाहिए यहां पे पास, ठीक है, लेकिन हमने क्या पास कर दिया, कंट्री. सो कंट्री इज नॉट देयर, सो द करेक्ट वैल्यू शुड बी कंट्रीज हियर. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज आपका, ये हमने 4 गलतियां ढूंढ ली हैं, सो आई थिंक इसमें और गलती इसमें नहीं है. सो लास्ट में प्रिंट df एज इट इज लिख देना है. सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the string painting and write SQL command to display the following output. जब हम ing हमें अब जब डिस्प्ले करना है यहाँ पे, so when we have to display the ing, मतलब लास्ट के ये 3 कैरेक्टर, अब लास्ट के 3 कैरेक्टर फेच करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, we use select right, और कोट्स में हमने पेंटिंग पास कर दिया बिकॉज वो स्ट्रिंग है, और उसके बाद कॉमा 3, तो राइट के 3 मतलब ing अगर हमें फेच करना हो तो. अब बात आती है हमारी int हमें फेच करना है. सो int है कहां पे, सो इफ वी सी int इज इस पोजीशन से शुरू होकर ये int है इस पेंटिंग के अंदर. अब ये पोजीशन किस पोजीशन से शुरू हो रहा है, ये थर्ड पोजीशन से शुरू हो रहा है, और थर्ड पोजीशन शुरू होने के बाद कितने कैरेक्टर फेच करने हैं, हमें 3 फेच करने हैं. सो वी कैन यूज सब मिड, सबस्टर और सबस्ट्रिंग, कोई भी यूज कर सकते हैं, एंड द आंसर विल बी सेलेक्ट मिड, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर कोट्स में हमने स्ट्रिंग पास किया दैट इज पेंटिंग, और थर्ड कैरेक्टर से उसने शुरू किया, and then it will fetch 3 characters. So second argument जो इसमें होता है that is starting position, and the next 3 is basically the number of characters to fetch, and that we have to fetch 3 characters. Okay, so this is the correct answer. So let us move to the next question. So find the output of the following Python code. अब यहाँ पे हमारा है import pandas as pd. पहले कोड को देख लेते हैं कि क्या काम कर रहा है, वी आर क्रिएटिंग अ सीरीज या डाटा फ्रेम या क्या कर रहे हैं. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. सो इट सेज वैक्सीन अंडरस्कोर QTY इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, तो इसने एक सीरीज बनाई, तो जो सीरीज बनेगी वो कुछ इस तरीके की बन गई. टाइफाइड मतलब हमारे इंडेक्सेस होंगे, टाइफाइड, टेटनस, हेपेटाइटिस, ये हमारे इंडेक्सेस होंगे, और जो डाटा वैल्यूज हैं वो 10, 16, 1 है, वो जो बाद में आते हैं. Similarly, cost is equal to PD dot series, then after that 1200, 500, 800 and indexes हमारे ये हैं. So it will create a series something like this. अब next line में हमारा क्या लिखा हुआ, print vaccine underscore QTY plus cost. That means हम क्या कर रहे हैं, दोनों को add कर रहे हैं, plus कर रहे हैं. तो जब हम mathematical operation करते हैं 2 सीरीज पे, तो वो कैसे काम करता है, उनके जो कॉमन इंडेक्सेस होंगे, उनकी जो डाटा वैल्यू होंगी वो प्लस या माइनस होती हैं, और जो कॉमन इंडेक्स नहीं होंगे उनके आगे नैन आ जाएगा. सो इफ वी सी हियर, सो टाइफाइड 10, टेटनस 16, ठीक है, टाइफाइड नीचे भी है 200, टेटनस 500, लेकिन हेपेटाइटिस ऊपर है नीचे नहीं है, फ्लू नीचे है ऊपर नहीं है, मतलब दोनों में नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ. तो जो ग्रीन मैंने अंडरलाइन किया दैट मींस वो तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन हेपेटाइटिस और फ्लू के आगे नैन शो करेगा. इसका मतलब ये हुआ क्योंकि वो मैच नहीं कर रहे हैं. अब यहां पे टाइफाइड जैसे हमारा 10 है और टेटनस 16 है, तो टेटनस हमारा 16 के साथ 500 ऐड कर देगा, और टाइफाइड 10 जो है उसके साथ 200 ऐड कर देगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी फ्लू नैन, हेपेटाइटिस नैन, टेटनस 516, टाइफाइड 210. सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन 2 सीरीज. तो 2 सीरीज पे आप कैसे काम करते हो, जिनके कॉमन इंडेक्सेस होंगे उनकी डाटा वैल्यूज को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं. जो कॉमन इंडेक्स नहीं है 2 सीरीज में, उसके आगे वो हरदम नैन दिखाएगा. एक और कंफ्यूजन बच्चों को कि मैंने फ्लू पहले क्यों लिखा. नाउ दिस इज द एक्चुअल आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर. नाउ इफ यू सी द ऑर्डर, तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसने लगा दिया. कैलकुलेशन तो ठीक है आपकी, ठीक है, लेकिन उसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया कि पहले F आता है, फिर H आता है, देन T और T तो सेम है, लेकिन सेकंड लेटर देखो
टेटनस का ई और टाइफाइड का वाई, तो वो वाई बाद में आएगा, ई पहले आएगा, तो इस ऑर्डर में इसने उसको अरेंज कर दिया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. वेब होस्टिंग एंड दूसरा आपका है www. तो वेब होस्टिंग होती क्या है? तो वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस है जिससे कि हम स्टोरेज स्पेस ले सकते हैं अपनी वेबसाइट के फाइल्स को स्टोर करने के लिए. सो वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड स्टोरेज स्पेस एंड एक्सेस टू वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट. ओके, लेकिन www क्या है? www इज वर्ल्ड वाइड वेब, इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसोर्सेज लिंक थ्रू हाइपरलिंक. तो इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स और रिसोर्सेज का आप बोल सकते हो एक पूरा वो है, वेब है, वी कैन से जाल है, जो कि एक हाइपरलिंक से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. ठीक है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पाइथन कोड. सो इंपोर्ट पांडास एज पीडी. इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स आपको नजर आ रहे होंगे. यू माइट सी दोज फिल इन द ब्लैंक्स. सो वी हैव टू फिल दोज. ओके, नाउ आउटपुट कुछ इस तरीके से हमें प्रोड्यूस करना है. कंप्लीट द अबव गिवन पाइथन कोड टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट. ठीक है. सो इंपोर्ट पांडास एज पैन इज ओके. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कस्टमर. देन आफ्टर दैट इफ यू सी वी हैव लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज. जब लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास वी हैव 3 रोज. यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द रो. ठीक है. देन वी हैव द सेकंड रो. ओके, एंड देन वी हैव द थर्ड रो. ये 3 रो है. तो 3 रो है तो 3 डिक्शनरी क्रिएट होंगी. फाइन. सो इफ वी क्रिएट दोस 3 डिक्शनरीज, तो डिक्शनरी कैसे बनेगी? हमारा जो की होगा वो कॉलम का नाम होगा नेम. देन आफ्टर दैट वी हैव द एज. यू कैन सी दिस. देन जेंडर. यू कैन सी दिस जेंडर है. देन ऑक्यूपेशन. सो पहले वाला तो आपके लिए कंप्लीट किया हुआ है पूरा. नाउ नेक्स्ट वाली बात करते हैं. तो यहां पे आ गया नेम. ओके, रोजर. ठीक है, यू कैन सी दिस रोजर. देन एज 34. ओके, जेंडर मेल. देन यहां पे क्या आएगा? दिस शुड बी ऑक्यूपेशन. तो यहां पे ऑक्यूपेशन मिसिंग है. अब ये क्वेश्चन में ही एक मिस्टेक और की हुई है. यहां पे एनालिस्ट लिखा हुआ है, यहां पे इंजीनियर लिखा हुआ है, यहां पे ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है, यहां पे इंजीनियर लिखा हुआ है. तो वो मिस्टेक को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नजरअंदाज करते हैं. मेन चीज है कि हमें फिल इन द ब्लैंक में यहां पे क्या फिल करना है. तो यहां पे हमें फिल करना है बेसिकली हमारा वी हैव टू फिल ऑक्यूपेशन हियर. सो इफ वी सी द करेक्ट आंसर हियर, तो यहां पे फर्स्ट लाइन इज ओके, बट यहां पे हमें ऑक्यूपेशन फिल करना पड़ेगा. देन आफ्टर दैट थर्ड डिक्शनरी ओके क्रिएट की हुई है. फाइन. नाउ डीएफ इज इक्वल टू. अब डीएफ इज इक्वल टू में ये चीज ध्यान रखना कि जो आपने ऊपर ये डिक्लेयर किया है पैन, तो ये पैन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यही चीज यहां पे इस्तेमाल होनी चाहिए पैन. और डाटा फ्रेम के अंदर जो आपने ये डिक्लेयर किया है वो यहां पे आ जाएगा. सो दिस इज हाउ यू राइट द कोड टू क्रिएट योर डाटा फ्रेम. और सीरीज में भी सेम चीज होती है. ठीक है, बस डाटा फ्रेम की जगह सीरीज वर्ड आ जाता है. सो दैट इज पैन हमारा आ गया. दैट इज जिस नाम से हमने अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, और दूसरा हमारा किस नाम से हम लोगों ने लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनाई है. एंड लास्ट में प्रिंट क्या करना है? जिस नाम से हम लोगों ने डाटा फ्रेम बनाया दैट इज डीएफ के नाम से. तो जो हमारा ये डीएफ है वो यहां पे आ जाएगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कंप्लीट दिस पाइथन कोड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप टेबल कमांड ऑफ माईसीक्वल. सो डिलीट हमारा जो है वो डीएमएल कमांड है. ड्रॉप जो है हमारा डीडीएल कमांड है. पहला तो ये मैंने बताया था कि भाई ये बता दो कि किस कैटेगरी का कमांड है. दूसरा ये बता दो कि क्या काम करता है. डिलीट क्या काम करता है? रोज को डिलीट करता है. ड्रॉप टेबल क्या करता है? टेबल को डिलीट करता है अलॉन्ग विद इट्स स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल में उसका एक सिंटैक्स लिख दो. ठीक है. सो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन. सो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नेम इज इक्वल टू 3. आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. टीचर को समझ में आ जाएगा. हाँ, आपको सिंटैक्स याद है, आपको स्टेटमेंट लिखनी आती है उसकी. नेक्स्ट इज ड्रॉप टेबल के लिए ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट्स हमने पास कर दिया. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द टेबल बाइक्स गिवन बिलो. तो हमारे पास टेबल दी हुई है, उसमें BID है, बाइक नेम है, ब्रांड नेम है, बाइक टाइप है और कॉस्ट है. And the question says we have to display. Now write SQL commands for the following. So क्या है यहाँ पे? Display. Second question में क्या है? Display. Third question में क्या है? Write using which will produce the same output. So that means select command already दिया हुआ है, same output produce करना है. So that means it is also display. तो display जब भी करना है तो क्या करना है? Select करना है. क्या select करना है? फर्स्ट क्या क्या शो करना है, सेकेंड लाइन में फ्रॉम, थर्ड लाइन में कंडीशन. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो यहां पे हमें क्या डिस्प्ले करना है? सो वी हैव टू डिस्प्ले व्हाट? सो वी हैव टू डिस्प्ले बाइक नेम्स. सो वी हैव टू डिस्प्ले बाइक नेम्स एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग ब्रांड नेम. तो हमें दो चीजें शो करनी है.
इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कॉस्ट। वो बात की बात है, लेकिन हमें क्या चीजें शो करनी है, वी हैव टू डिस्प्ले टू थिंग्स। सो फर्स्ट इज वी हैव टू डिस्प्ले बाइक नेम, ब्रांड नेम। सो वी राइट सेलेक्ट बाइक नेम कॉमा ब्रांड नेम, एंड वगैरह नहीं आता सेलेक्ट में, ध्यान रखना। सेलेक्ट के में क्या क्या शो करना है, कॉमा सेपरेटेड होता है। फ्रॉम नेक्स्ट लाइन में आना ही आना है, दैट इज टेबल का नाम। और टेबल का नाम कहां से देखोगे, ये आप देखोगे ऊपर, तो दिस इज योर टेबल नेम। सो दिस इज योर टेबल, दैट इज बाइक्स। तो एक्चुअल में नेम क्या है, बाइक्स। सो यू राइट बाइक्स है, तो यहां पे सेम नाम आप यहां पे मेंशन करोगे, बाइक्स। ओके, देन अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है रिकॉर्ड्स को, सो यू राइट ऑर्डर बाय क्लॉज, एंड देन किस के अकॉर्डिंग, तो वो बताना जरूरी है। ऑर्डर बाय अपने आप तो नहीं करेगा ना। सो वंस यू राइट ऑर्डर बाय, सो ऑर्डर बाय के बाद ये चीज ध्यान रखना कि वंस यू राइट ऑर्डर बाय, यू हैव टू राइट कि अकॉर्डिंग टू BID या बाइक नेम या ब्रांड नेम या बाइक टाइप या कॉस्ट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज वी हैव टू अरेंज अकॉर्डिंग टू व्हाट, कॉस्ट। ठीक है, वो अलग बात है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो उसके आगे एक और वर्ड आ जाएगा डिसेंडिंग के लिए, DESC। असेंडिंग के लिए यू कैन राइट ASC, या फिर अगर कुछ भी नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग में ही अरेंज करेगा। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डिस्प्ले ब्रांड नेम्स ऑफ बाइक्स। सो वी ओनली हैव टू डिस्प्ले ब्रांड नेम्स। सो इसलिए सेलेक्ट के बाद ओनली ब्रांड नेम यहां पे लिखा हुआ है, यू कैन सी सेलेक्ट के बाद और कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रांड नेम। ओके, ऑफ बाइक्स हुज बाइक टाइप इज नॉट नोन। तो जिसका बाइक टाइप नहीं पता, तो जिसका बाइक टाइप नहीं पता मतलब जो बाइक टाइप नल है, तो विल राइट फ्रॉम बाइक्स वेयर बाइक टाइप इज नल। ठीक है, इस तरीके से। तो इक्वल नल अगर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। कंडीशन नल के साथ हरदम इज नल करके ही आती है, या फिर अगर उसका ऑपोजिट लिखना है तो विल राइट इज नॉट नल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कंसिडर द फॉलोइंग क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बाइक्स वेयर कॉस्ट बिटवीन 2 लाख and 3 lakh. ठीक है, so write another query using relational and logical operator which will produce the same output. अब लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर कहाँ इस्तेमाल करते हो आप, यहाँ पे इस्तेमाल करते हो। दैट मीन्स पूरी क्वेरी सेम रहेगी, ये जो बिटवीन है ना ये चेंज हो जाएगा, मतलब उसको लिखने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द वे, सो विल राइट सेलेक्ट स्टार एज इट इज, फ्रॉम बाइक्स एज इट इज, वेयर एज इट इज। अब बिटवीन की जगह हम लिखेंगे कॉस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लाख एंड कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 3 लाख। सो दोनों का सेम आउटपुट प्रोड्यूस होगा, एक बिटवीन करके लिखा हुआ है, एक विदाउट बिटवीन है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग। ओके, नाउ इसी में if you see we have the or part as well. So predict the output the following queries based on the table bikes. तो बाइक्स टेबल पे हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना है। तो आउटपुट मैंने आपको बता रखा है, बहुत आसान होता है। आप सबसे पहले वेयर को देखोगे, सेलेक्ट डिस्प्ले करना है। ठीक है, सेलेक्ट लिखा हुआ है, डिस्प्ले करना है। BID इज इक्वल टू 103, तो 103 वाले रिकॉर्ड को आप अलग कर लो। ठीक है, कर लिया हमने अलग। नाउ इट सेज UK स्ट्रीम ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम कहां पर है इसका, ब्रांड नेम ये वाला है, ब्रांड नेम इज इंडियाना। सो यहां पे जो हमारा ब्रांड नेम है वो क्या है, ये इंडियाना है ब्रांड नेम। तो ये बोल रहा है कि उसको कैपिटल लेटर में डिस्प्ले करना है, और उसमें जो एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह जो होंगी लेफ्ट और राइट की वो सब रिमूव कर देनी है। सो द करेक्ट आंसर विल बी इंडियाना इन कैपिटल लेटर्स, फुल कैपिटल लेटर्स। ओके, now let us see the next question. The next question says select count bike type from bikes. अब यहां पे जब ये लिखा हुआ है select count bike types from bike, तो उस केस में we have to count, what we have to count, so we have to count this bike type. तो bike type कहां पर है, ये है। अब इसमें से count करेंगे, तो count का मतलब ये हो गया कि we have to count how many values are there, लेकिन जो भी नल वैल्यू होगा उसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। और कोई नल तो नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। नाउ लेट अस ट्राई टू काउंट दिस। सो 1 सुपर, टूरिंग 2, स्पोर्ट्स 3, सुपर 4, नॉर्मल 5, एडवेंचर 6, टूरिंग 7, सुपर 8 और नॉर्मल 9. So the correct answer will be 9. So it counts the number of values in a specific column excluding null. तो null को छोड़ के काउंट कर लो आप, ठीक है। अगर यहाँ पे काउंट स्टार लिखा होता तो काउंट स्टार में ये तो नहीं बोला BID को काउंट करो या बाइक नेम या ब्रांड नेम या बाइक टाइप या कॉस्ट, तो स्टार जब भी लिखा होगा तो आप ये देखोगे हाउ मेनी रोज आर देयर, तो आप रोज काउंट करोगे, ठीक है। I hope you have understood the output of this one as well. So let us see the next one. So select some cost. So what we have to display? Select some cost. Okay. Comma brand name from bikes. Group by brand name. अब यहाँ पे लिखा हुआ है group by brand name. ठीक है। Now if you say group by brand name, तो group by brand name का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इसी को ग्रुपिंग करेंगे।
अब ग्रुप बाय ब्रांड नेम में जितने अलग अलग ब्रांड्स हैं, एक तो है स्पीडो, एक है इंडियाना और कोई तो नहीं है, नहीं यही है, ठीक है। एक ग्रुप ये बन गया इंडियाना का, एक ग्रुप बन गया हमारा WMV का एक ग्रुप बन गया एक, और ये भी WMV का ग्रुप है, ये 2, ठीक है। सो अभी तक 3 ग्रुप हमारे बन चुके हैं। स्पीडो ऑलरेडी हमारा हो चुका है, यू कैन से दिस, स्पीडो ऑलरेडी हमारा हो चुका है, वो फर्स्ट ग्रुप में आ गया था। तो अभी तक 3 ग्रुप बन चुके हैं। देन इज विक्ट्री का एक ग्रुप, रोडी का ग्रुप और जेम का ग्रुप। तो इस तरीके से हमारे 6 ग्रुप बन चुके हैं, सॉरी, ठीक है। सो 6 ग्रुप्स उसने बना दिए, लेकिन अभी 6 ग्रुप्स पे काम नहीं करना है। हमें क्या करना है, वी हैव टू ओनली डिस्प्ले फॉर द ब्रांड नेम WMV और इंडियाना। तो WMV और इंडियाना, सिर्फ इन 2 ग्रुप्स पे हमें काम करना है। तो जब हमें WMV और इंडियाना पे काम करना है, सो विल फोकस ओनली ऑन WMV एंड इंडियाना। तो एक तो इंडियाना का ये रहा ग्रुप हमारा, ठीक है, और कोई इंडियाना है ही नहीं। और दूसरा हमारा जो ग्रुप है WMV का, वो एक रिकॉर्ड यहां पर है और 2 रिकॉर्ड्स हमारे यहां पर हैं। तो विल बी वर्किंग ओनली ऑन दीज 2 ग्रुप्स, बाकी ग्रुप पे हम काम नहीं करेंगे। सो अब इनका क्या निकालना है, सो वी हैव टू फाइंड आउट सम कॉस्ट, ठीक है। तो अब सम कॉस्ट इंडियाना का अगर बात करते हैं, तो इंडियाना का यहां पे है 23 lakhs और वहां पे है 50,000, सो 23,50,000 हो गया उसका सम, ठीक है। और सेकंड जो हमारा WMV है, जो हमारा ये ग्रुप्स बना, तो उसमें 15 लाख, 30 लाख और 42 लाख, इनको हम प्लस कर देंगे एंड विल गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू। सो आपको मैं दिखा देता हूं आउटपुट क्या आएगा। इट विल डिस्प्ले इंडियाना 23,50,000 और दूसरा WMV का ग्रुप दैट इज 87 लाख। सो दिस विल बी द करेक्ट आउटपुट। बाकी ग्रुप्स को हमें दिखाना ही नहीं है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आउटपुट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेजल, अ पाइथन प्रोग्रामर हैज बीन गिवन द फॉलोइंग टास्क, क्रिएट 2 सीरीज, 1 टू स्टोर वेरियस प्रोडक्ट नेम्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 सीरीज बनानी है। एक सीरीज हमें प्रोडक्ट के नाम को स्टोर करने के लिए बनानी है, दैट इज वी हैव टू स्टोर दीज नेम्स। और दूसरी जो सीरीज बनानी है, ठीक है, एंड द अदर टू स्टोर द कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस। दूसरी सीरीज इस चीज के लिए बनानी है। सो वी हैव टू क्रिएट दीज 2 सीरीज, ठीक है। आगे फर्दर दिया हुआ है सेकेंड पार्ट में, क्रिएट अ डिक्शनरी कंटेनिंग प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम एंड प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस एज कीज। तो हमें एक डिक्शनरी बनानी है जिसमें प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम और प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस उसके की होंगे, और जो हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट में जो सीरीज बनाए हैं वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगे। ओके, थर्ड है क्रिएट अ डाटा फ्रेम फ्रॉम द अबव क्रिएटेड डिक्शनरी ऑफ सीरीज। तो लास्ट में हमें डाटा फ्रेम बनाना है जो हमने डिक्शनरी ऑफ सीरीज ऊपर बनाया है उसको यूज करके। सो हेल्प हर इन राइटिंग द पाइथन प्रोग्राम टू अकम्प्लिश द अबव मेंशन टास्क। तो इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, दैट मीन्स यू कैन राइट द एंटायर कोड एट वन गो और यू कैन ब्रेक इट इनटू लाइंस। सो द कोड विल बी, फर्स्ट यू विल इंपोर्ट pandas as PD, ये मैंडेटरी है। देन आफ्टर दैट व्हाट यू विल बी डूइंग इज, आपका जो इंडेक्सेस हैं, सो इफ यू सी हियर, सो वी हैव दीज इंडेक्सेस। सो ये इंडेक्सेस जो हैं पहले आप इनको डिक्लेयर करोगे। सो इंडेक्स की पहले आपने लाइन बनाई, देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड अगेन अ लिस्ट ऑफ, we have created a list of your product names, we have created a list of your product price, ये हमने कर लिया। अब ये करने के बाद हम लोगों ने एक्चुअल में लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सीरीज बना रहे हैं। तो जो सीरीज बना रहे हैं हमने उसको नाम दिया PN सीरीज, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो PN सीरीज इज इक्वल टू PD.series। अब यहाँ पे जो डाटा है वो हमारा ये रहा PN, और जो इंडेक्स है वो मेरा I में है। सिमिलरली नेक्स्ट मैंने सीरीज बनाया PP सीरीज इज इक्वल टू PD.series, उसमें जो मेरा PP है दिस इज माई डाटा वैल्यूज, और इंडेक्स दोनों में कॉमन है, वो I है, तो पहले से हमने डिक्लेयर किया हुआ था। So I hope you have understood this. Now after that finally what we have to do is we have to create a dictionary. So जो डिक्शनरी बनेगी, तो डिक्शनरी के अंदर हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, ये हमारा की हो गया, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा वो ये रहा PN सीरीज, वो कोट्स में नहीं आएगा। फिर कॉमा करके सेकंड मेरा की आएगा दैट इज प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस, जो मेरा ये है कॉलम हेडिंग ऊपर ध्यान से देखोगे आप, और फिर उसके कॉलन करके हमारा जो ये हमने सीरीज बनाया था विल बी पासिंग दैट सीरीज, दैट मीन्स वो कोट्स में नहीं आएगा बिकॉज इट्स अगेन अ वेरिएबल। देन फाइनली व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी क्रिएटिंग अ डाटा फ्रेम जिसमें कि ये डिक्शनरी हमने पास कर दिया, एंड फाइनली विल प्रिंट दैट DF, एंड दिस इज द एंटायर कोड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज हाउ वी कैन क्रिएट data frame from the list dictionary of series. Okay,
Now we'll move on to the next question. The next question is answer the following questions based on the table given below. So the question is आपका suggest the primary key for the given table. तो अगर हम टेबल देखते हैं तो टेबल का नाम हमारा क्या है, तो सेल्स, एंड वी हैव दिस कॉलम्स, आईडी है, नेम है, सिटी है और कमीशन है. ये हमारे 4 कॉलम्स हैं. तो इनमें से कौन सा प्राइमरी की बन सकता है जिसमें कौन से में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकते. तो सेल्स की बात कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि जो सेल्समैन है वो किस सिटी में कितना कमीशन उन्होंने अर्न किया है. सो नाउ आईडी जो होगा वो सेल्समैन आईडी, दैट विल बी यूनिक, और सेल्स आईडी वी कैन से दैट विल बी यूनिक. सो ये सेल्स आईडी विल बी यूनिक. नेम सेम हो सकता है, सिटी भी सेम हो सकती है, और है भी, देखोगे आप ध्यान से, मुंबई, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, एंड कमीशन भी सेम हो सकता है 2 यूजर्स का या 2 जो भी सेल्स का, ठीक है. सो अल्टीमेटली द आंसर विल बी योर आईडी. नाउ राइट द एसक्यूएल कमांड टू इंसर्ट द फॉलोइंग डाटा इन द टेबल. सो आईडी हमारा दिया हुआ, नेम, सिटी, कमीशन. सो आंसर विल बी इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज, और पैरेंथेसिस में वो चारों वैल्यूज ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर आएंगी, कॉमा सेपरेटेड, और जो भी हमारी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो कोट्स में आनी जरूरी है, ठीक है. And the third one is the command used in part 2 a DDL or a DML command. जो part 2 हमने command use किया, part 2 में कौन सा command use किया? So we have used this insert into command. So insert into जो हमारा command है, ये क्या है, DDL है कि DML है? So this is your DML command. So the answer will be your DML command. Okay. Okay. Now next question is, Sarah works in a multinational IT firm. One day she came to know that some mails were sent from her official mail account but she had not actually sent them. अब उसके मेल आईडी से लोगों को मेल गए हैं लेकिन उसने मेल ही नहीं किए वो. So based on the given information, answer the following questions. Sarah is a victim of which type of a cyber crime? So she is basically a victim of identity theft, ठीक है, या फिर email spoofing. Okay. Now next is write any 2 precautions that one should take to protect oneself from being the victim of cybercrime. तो वो क्या कर सकती है? So don't share the password, log out from account after using it. Okay. Next is, should Shara immediately change the password of her email account? The answer is yes. और एक्सप्लेन नहीं करने के लिए बोला, क्या उसे चेंज करना चाहिए? हाँ, हो सकता है कि उसका पासवर्ड किसी और के पास हो, ठीक है, इसीलिए दूसरों के पास उसके मेल आईडी से मेल्स गए हैं. Okay, next इसी में और पार्ट था. At a local electronic store, a new range of smartphone has been launched, creating a buzz among technology enthusiasts. However, the introduction of these new devices has also raised concerns about the increasing generation of e-waste in the community. So, एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है. So, answer the following question based on above extract. Define e-waste. What is e-waste? It refers to discarded electronic devices such as smartphones, laptops and other gadgets that are no longer in use or have become obsolete. मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी पुराना फोन पड़ा है जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो e-waste है हमारे लिए. Now, give any one environmental challenge posed by e-waste, including its impact on air, water and soil quality. So, soil contamination होता है e-waste से. So, when e-waste is dumped in landfills, toxic substances like lead, mercury and cadmium leach into the soil, making it infertile and harmful for plants and animal life. Okay, next question is, imagine you are a part of a local environment organization. Okay, provide any 2 strategies that could be implemented to minimize the negative environmental effects of e-waste. So we can promote e-waste recycling program, number 1, and we can encourage responsible consumer behavior. That means यूज़र्स को हम लोग मतलब जागरूक कर सकते हैं अपने लोगों को कि भाई जब तक हमारा प्रोडक्ट काम कर रहा है हम उसको यूज़ करते रहें. ये नहीं हो कि भाई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उस प्रोडक्ट के मतलब मार्केट में उसका बहुत ज़्यादा बज़ है, बस उसको ख़रीदना है हमें. Even though we don't require that product right now, but still we have to buy that product to show off. So we have to encourage that responsible consumer behavior as well. Okay. So now next question is, consider the following data frame cricket. So ये हमारा एक data frame है cricket. So write suitable Python statement to perform the following task. So first one is add a new column. तो हमें एक नया column add करना है. उस column का नाम क्या है? उस column का नाम है
rating. So we have to add a new column and the column name is your rating. So यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना है और कॉलम का नाम होना चाहिए यहाँ पे रेटिंग और उसके अंदर की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होनी चाहिए वो ये हमारे पास हैं. सो जब भी हम कॉलम ऐड करते हैं, क्योंकि डाटा फ्रेम का नाम हमारा क्या है, द डाटा फ्रेम नेम इज क्रिकेट, सो वी हैव टू यूज क्रिकेट, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट में कोट्स में कॉलम का नाम, ठीक है. दिस इज द वे यू ऐड अ न्यू कॉलम इज इक्वल टू, और फिर अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज कॉमा सेपरेट करके हम लिख देंगे. सो दिस इज हाउ अ न्यू कॉलम विल बी क्रिएटेड. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इसका है, चेंज द रो लेबल फ्रॉम ए बी सी डी ई. तो हमारे जो रो लेबल्स हैं इसके अंदर, इफ यू सी द रो लेबल्स, तो यहां पे जो हमारे रो लेबल्स हैं दैट इज योर ए बी सी डी ई, ये हमें चेंज करने हैं टू टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी एंड टीम ई. सो व्हेन यू हैव टू रीनेम द रो लेबल या फिर कॉलम लेबल, दोनों के लिए सेम सिंटेक्स यूज होता है, तो वो हमारा होगा, इट विल बी क्रिकेट इज इक्वल टू क्रिकेट डॉट रीनेम. तो इट्स अ फंक्शन. सो जो रीनेम है वो क्या है हमारे लिए, हमारे पास ये एक फंक्शन है जो हमारा नाम चेंज कर सकता है इंडेक्स लेबल्स का या फिर कॉलम लेबल्स का. सो वी कैन यूज रीनेम, और फिर बिकॉज इट्स अ फंक्शन सो वी यूज दिस पैरेंथेसिस. तो बिकॉज इट्स अ फंक्शन तो वी यूज दैट पैरेंथेसिस, और फिर पैरेंथेसिस में करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग की में पुराना नाम पास करेंगे और वैल्यू में उसको कॉरस्पॉन्डिंग नया नाम. तो यू कैन सी हियर what we have passed is we have passed A as the old name and उसका corresponding A की जगह टीम A होना चाहिए, B की जगह टीम B होना चाहिए, और कॉलन सेपरेटेड है. दिस इज योर कॉलन, मतलब की में पुराना नाम और वैल्यू में नया नाम. सेम सी में की में नया पुराना नाम और यहाँ पे नया नाम. सो नाउ बिकॉज इंडेक्सेस चेंज करने थे, वी हैव टू चेंज द इंडेक्सेस. तो बिकॉज हमें ये चेंज करने थे तो एक्सेस हमारा हरदम होगा 0. तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप इंडेक्सेस चेंज करना चाहते हो, इंडेक्सेस को डिलीट करना चाहते हो, तो इट हैज टू बी आपका एक्सेस इज इक्वल टू 0. सो यू कैन सी हियर वी हैव पास्ड एक्सेस, और अगर नहीं भी पास करोगे स्टिल, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज एक्सेस इज इक्वल टू 0 ओनली. ओके, now the next question is change the column label of first column from 1 to matches 1. again same ही चीज है. अब देखोगे we have to change 1 to, आपका जो 1 है उसको हमें चेंज करना है matches 1 में. so we have to change this 1 to matches 1. so you can see here cricket is equal to cricket dot rename parenthesis के अंदर करली ब्रेसेस में 1 colon matches 1, और access is equal to 1 देना कंपलसरी हो जाता है यहाँ पे, because we are going to change column. अगर access नहीं दोगे तो वो रो को ही सर्च करता रह जाएगा और वो चेंज ही नहीं कर पाएगा. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर एज वेल. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, Miss Sridevi is a placement head in a reputed engineering institute and has created the following table to store the records of students getting placement in various companies. तो ये हमारा प्लेसमेंट का एक टेबल है. ओके, नाउ बेस्ड ऑन द गिवन टेबल हेल्प मिस श्रीदेवी टू राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग टास्क. सो फर्स्ट इज टू लिस्ट नेम्स. लिस्ट हो, डिस्प्ले हो, इट इज सेलेक्ट कमांड. सो टू लिस्ट नेम्स ऑफ दोज कंपनीज वेयर डिपार्टमेंट इज ईदर मार्केटिंग और नेटवर्किंग. सो द करेक्ट आंसर विल बी, बिकॉज वी हैव टू डिस्प्ले नेम, सो विल राइट सेलेक्ट कंपनी नेम, ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम कंपलसरी है, दैट इज प्लेसमेंट, एंड वेयर डिपार्टमेंट इन, और पैरेंथेसिस के अंदर मार्केटिंग कॉमा नेटवर्किंग. आप ऐसे भी कर सकते हो, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मार्केटिंग और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू नेटवर्किंग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज टू डिस्प्ले द ज्वाइनिंग मंथ नेम फॉर राइजिंग स्टार कंपनी. तो हमें सिर्फ महीने का नाम बताना है. अब महीने का नाम किस चीज का, ज्वाइनिंग. सो ज्वाइनिंग का है, तो ज्वाइनिंग कहां पे है, सो ज्वाइनिंग इज इनसाइड दिस DOJ कॉलम. सो इस कॉलम में तो विल राइट सेलेक्ट मंथ नेम ब्रैकेट में DOJ पैरेंथेसिस के अंदर. आपका पूरा MySQL में एक ही ब्रैकेट यूज होता है, दैट इज पैरेंथेसिस. सो विल राइट सेलेक्ट मंथ नेम. ओके, एंड देन मंथ नेम के बाद हम क्या यूज करेंगे, विल यूज ब्रैकेट में DOJ, एंड देन फ्रॉम टेबल का नाम तो कंपलसरी है, वेयर कंपनी नेम इज इक्वल टू राइजिंग स्टार. दैट इज आवर फिल्टर. Now, Miss Sridevi has written following queries. Write the output of each. तो इसके लिए हमें आउटपुट यूज करना है. सो आउटपुट करना है, तो आउटपुट के अंदर हमें, आपको पता ही है कि क्या करना होता है. सबसे पहले कंडीशन देखो. तो अब कंडीशन क्या है, वेयर वैकेंसी ग्रेटर देन 20. अभी तो मैंने देखा ही नहीं क्या डिस्प्ले करना है, लेकिन सबसे पहले वैकेंसी ग्रेटर देन 20 को अलग कर लो. अब ग्रेटर देन 20 कौन कौन सी है, वैकेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब 20 वाली भी उठानी है. तो यहां पे एक तो ये सही हो गई, ये भी 20 या 20 से ज्यादा है, और तो कोई नहीं है. सो दैट मीन्स इन 2 रोज पे हम काम करेंगे. अब देखते हैं सेलेक्ट में क्या दिया हुआ है. तो अगर हम सेलेक्ट की बात करें
तो सेलेक्ट में दिया हुआ है लेफ्ट कंपनी नेम कॉमा इंस्टर कंपनी नेम कॉमा आर। तो अब दो फंक्शन है लेफ्ट और इंस्टर, तो पहले अंदर वाला फंक्शन पे काम करेंगे इंस्टर पे। तो इंस्टर पे काम करते हैं तो कंपनी नेम आर, तो कंपनी नेम आर यहां पे है, ठीक है। सो कंपनी नेम में आर फेच कर रहे हैं, तो आर की पोजीशन क्या है 1। सो यहां पे हमारा स्टोर हो जाएगा क्या चीज, सो इट यहां पे आ जाएगा फर्स्ट के लिए 1 आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट रो के लिए। अब उसी के लिए बात करते हैं, तो कंपनी का नाम क्या है राइजिंग स्टार, और लेफ्ट से राइजिंग स्टार से 1 उठाओ, ओनली 1। सो द आउटपुट विल बी आर, ओनली आर। अब सेकेंड वाले की बात करते हैं, तो इसमें दिया हुआ है इंस्टर कंपनी नेम आर, तो आर किस पोजीशन पे है, तो स्मोक में आर है, एस इज 1 कैरेक्टर, आर है यहां पे रिंग में, लेकिन एस इज 1 कैरेक्टर, एम सेकेंड, ओ थर्ड, के फोर्थ, ई 5, स्पेस इज 6 एंड आर इज 7, तो वो 7 वहां पे डाल देगा। तो लेफ्ट से 7 कैरेक्टर फेच करने, तो लेफ्ट से 7 का मतलब हो गया स्मोक स्पेस आर फेच करेगा, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, दिस वाज अ ट्रिकियर वन, बट मुश्किल नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करोगे तो आसानी से हो जाता है, ठीक है। नाउ अगेन फोर्थ वाले में आउटपुट प्रोड्यूस करना है, सो इट सेज वेयर वैकेंसी लेस देन 20, सो वैकेंसी लेस देन 20 एंड अपीयर्ड ग्रेटर देन 300, एंड लगा हुआ है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। तो वैकेंसी लेस देन 20 देखते हैं, ये क्या ये 20 से कम है, नहीं है। क्या ये 20 से कम है, नहीं है। ये 20 से कम है, ठीक है, लेकिन क्या अपीयर 300 से ज्यादा है, हाँ है, तो ये रिकॉर्ड एक हमें मिल गया। वैकेंसी 20 से कम है, यस है, लेकिन क्या अपीयर्ड 300 से ज्यादा है, नहीं है। सो सेकंड वाला रिकॉर्ड जो है वो नहीं फेच करेगा, बिकॉज इसमें अपीयर्ड 300 से ज्यादा नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगेन नेक्स्ट वाला देखते हैं, तो क्या हमारा वैकेंसी 20 से कम है, हाँ है। क्या अपीयर्ड 300 से ज्यादा है, हाँ है, दोनों सही हो गया। तो इस रिकॉर्ड पे भी हम काम करेंगे, एक तो CP03 वाला रिकॉर्ड होगा और CP05, ये दो तो ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट एक और देखते हैं, क्या वैकेंसी 20 से कम है, हाँ है। क्या अपीयर्ड 300 से ज्यादा है, नहीं है। तो दैट मीन्स ओनली ये दो ऐसे रोज हैं जिनमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए हैं। सो विल बी वर्किंग ओनली ऑन दीज 2 रोज। अब ओके, दीज 2 रोज पे वर्क करना है, लेकिन क्या शो करना है इनका, सो व्हाट वी हैव टू डिस्प्ले, सो इट सेज वी हैव टू डिस्प्ले ओनली द कंपनी नेम। सो हमें क्या शो करना है, हमें सिर्फ कंपनी का नाम डिस्प्ले करना है। कंपनी का नाम क्या है, इसका कंपनी का नाम है पायलट और इसके कंपनी का नाम है नील जोन। तो आंसर विल बी पायलट और नील जोन, ओके। So answer is pilot and Neil zone. I hope you have understood this as well. Okay, let us move to the next question. So the next question is, Miss Shambhavi, a data analyst working on a college admission project, has created the following data frame sub_details to store subject wise details. तो उसने ये एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया है, उसका नाम है sub_details, ठीक है। Help her by answering the following questions. Write suitable Python command to display the row having index value आपका 3. सो इंडेक्स वैल्यू 3 यहां पर है। तो अब इसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमारा डाटा फ्रेम का नाम क्या है, द डाटा फ्रेम नेम इज योर sub_details. सो विल यूज प्रिंट, ठीक है। सो विल यूज प्रिंट sub_details, और रो को फेच करने के लिए वी यूज .loc, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका उसका लेबल, क्योंकि ये न्यूमेरिक लेबल है तो इसलिए आप 3 आप लिखोगे नॉर्मल, आप कोर्स में भी लिखोगे तो भी वो वर्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। द सेकंड वाज इज प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। सो नाउ अगेन इट सेज sub_details.loc 2:3, 2:3 LOC है, मतलब 2 और 3 इंक्लूडेड होंगे, तो 2:3 का मतलब होगी ये दोनों रो हमें फेच करनी है। लेकिन दोनों रो के सारी चीजें फेच नहीं करनी, सिर्फ टोटल स्टूडेंट्स। सो टोटल स्टूडेंट क्या है 40 and 45, सो इट विल ओनली डिस्प्ले 40 and 45. सो आंसर विल बी okay. So the next question is write suitable Python statement to display the list of various subjects along with their corresponding seat availability. तो अब हमें दोनों ही कॉलम शो करने हैं। सो यू कैन सी वी हैव टू डिस्प्ले सब्जेक्ट, ठीक है, दोनों लेबल नहीं है, दोनों हमारे कॉलम्स हैं। सो यहां पे हमें क्या क्या डिस्प्ले करना है, हमें डिस्प्ले करना है सब्जेक्ट एंड
उसका सीट अवेलेबिलिटी. दैट मीन्स वी हैव टू डिस्प्ले सब्जेक्ट एज वेल एज सीट अवेलेबिलिटी. तो जब हमें ये डिस्प्ले करना हो तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट राइट द नेम ऑफ द आपका डाटा फ्रेम एंड देन डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, मतलब दो है तो दो स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए नहीं, मल्टीपल कितने भी हो 3 4 5 6. सो अगर मल्टीपल कॉलम्स डिस्प्ले करना है स्पेसिफिक तो यू यूज डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स. ओके, and then within double square brackets you pass on all the column names that you have to display and that will be the answer. Fine. The next question is or part uska. Miss Shambhavi has just created a folder named project in the E drive of her computer to store necessary files related to project. Now write suitable Python statement to export the given data frame into the file stud.csv. Export करना है. So export करने के लिए we use data frame का नाम .to_csv and then parenthesis में quotes के अंदर किस ड्राइव के अंदर है, ई ड्राइव, उसके अंदर कौन सा फोल्डर है, प्रोजेक्ट, उसके अंदर कौन सी फाइल है, stud.csv फाइल. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके, let us move to the next question. Is consider the tables faculty and batch given below. तो ये दो टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन हमारा आ गया. सो नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन हियर, faculty and batch and write SQL queries for the following. So display name and salary of all faculties in alphabetical order of their name. तो अभी हमें क्या डिस्प्ले करना है, we have to display name, we have to display name and their corresponding salary. मतलब दोनों एक ही टेबल से डिस्प्ले करना है, ठीक है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स. सो ऑर्डर बाय लग जाएगा, ऑर्डर बाय FAC नेम, ठीक है, लेकिन दूसरे टेबल की यूज हो नहीं रहा है यहाँ पे, ना कंडीशन है कुछ, ना कुछ और यूज हो रहा है. सो विल ओनली यूज द सिंगल टेबल. सो द करेक्ट आंसर विल बी सेलेक्ट FAC नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम फैकल्टी ऑर्डर बाय FAC नेम. असेंडिंग ऑर्डर में है ना, ठीक है, तो इसीलिए DSC वर्ड वगैरह कुछ लगा नहीं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ फैकल्टीज, ओके, हु जॉइंड ऑन मंडे. सो डिटेल्स ऑफ फैकल्टीज का मतलब एस्टेरिक साइन लगाएंगे, लेकिन यहां पे कंडीशन लगा दी कि जिन्होंने मंडे को ज्वाइन किया. मंडे को ज्वाइन कहां से पता चलेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पता चलेगा, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर विल बी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी वेयर डे नेम, और डे नेम किसका निकालना है, DOJ का निकालना है, इज इक्वल टू एंड कोट्स में मंडे. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका डिस्प्ले नेम ऑफ फैकल्टीज, देयर सैलरी एंड बैच नेम. अब यहां पे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, सो वी हैव टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द फैकल्टीज, देयर सैलरी एंड देयर बैच नेम. मतलब कि दो एक टेबल में से दिखाना है और थर्ड हमारा बैच नेम जो है वो बैच टेबल में से दिखाना है. तो यहां पे इक्वी जॉइन लगेगा. तो फर्स्ट व्हाट विल बी राइटिंग इज विल बी राइटिंग द नेम ऑफ दीज थ्री कॉलम्स दैट वी हैव टू डिस्प्ले. सो सेलेक्ट फैक नेम कॉमा सैलरी कॉमा बैच नेम फ्रॉम फैकल्टी कॉमा बैच वेयर faculty.f_id जो कॉमन कॉलम है दोनों के अंदर. सो जो दोनों टेबल में कॉमन कॉलम है दैट इज योर दिस वन. सो द कॉमन कॉलम इज बेसिकली दिस f_id ये, और हमारा यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट कॉलम हो, ऐसा कोई भी लिखा नहीं हुआ कहीं पे भी. सो जो कॉमन कॉलम है वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन होगा जरूर, तभी आप फेच कर पाओगे. सो अगेन batch.f_id इक्वल में हम लगाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल फैकल्टीज हु सैलरी इज मोर देन 60,000 हैव जॉइंड बिफोर द ईयर 2007. तो अब जॉइंड बिफोर द ईयर, अब ईयर हमारा कहां पे है, DOJ के अंदर है, ठीक है, हुज सैलरी इज मोर, वी आर यूजिंग ओनली द सिंगल टेबल, ठीक है. सो आंसर इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी वेयर सैलरी ग्रेटर देन 60,000 एंड ईयर DOJ लेस देन 2007. Okay, now next is fifth one, that is display the name of the faculty who is taking TX alpha batch. अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो TX alpha batch कहाँ पर है. So if you see TX alpha batch, okay, so TX alpha batch is inside this batch name. तो यहाँ पर है TX alpha. So name of the faculty यहाँ पर है. So that means we have to display the name of the faculty who is taking TX alpha. So that means we again equi join लगेगा, लेकिन दिखाना सिर्फ fact name है, ठीक है. So the correct answer will be select FAC name from faculty comma batch, equi join कंपल्सरी है जब भी दो टेबल आ गए. तो where faculty.f_id is equal to batch.f_id and batch name is equal to TX alpha. तो TX alpha will be in the quotes. Okay, now let us move to the next question. So the next question is consider the table faculty and batch again. उसी में ये और वाला पार्ट था.
So display maximum days per week for each FID from the table batch. सिर्फ बैच में से हमें दिखाना है आउटपुट, एंड द क्वेश्चन सेज व्हाट वी हैव टू डिस्प्ले इज वी हैव टू डिस्प्ले मैक्सिमम डेज पर वीक. तो मैक्सिमम डेज पर वीक मतलब कोई अलग से वो नहीं है, ये कॉलम आपका दिया हुआ है डेज पर वीक, इसका मैक्सिमम वैल्यू दिखाना है. ठीक है, लेकिन हर FID का ईच FID मतलब ग्रुप बाय FID, जब भी हमें मैक्स मिन AVG सम काउंट ये डिस्प्ले करना हो, लेकिन फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ईच FID, तो अब इन दैट केस हम ग्रुप बाय करेंगे f_id. सो वो एक ही टेबल यूज हो रहा है यहां पे, बट विल बी डिस्प्लेइंग FID एंड देन मैक्सिमम ऑफ विल बी डिस्प्लेइंग f_id एंड मैक्सिमम ऑफ डेज पर वीक फ्रॉम बैच, द टेबल नेम, ग्रुप बाय f_id. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले नेम्स ऑफ फैकल्टीज आफ्टर रिमूविंग लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस. हमें फैकल्टी नेम डिस्प्ले करना है, वी हैव टू ओनली डिस्प्ले नेम ऑफ फैकल्टीज, लेकिन आफ्टर रिमूविंग लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसिंग, और लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसिंग रिमूव करने के लिए वी हैव वन फंक्शन एंड दैट इज ट्रिम. सो दैट इज एन ईजियर वन. सो सेलेक्ट ट्रिम फैक नेम फ्रॉम फैकल्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल फैकल्टी. फैकल्टी में कितने रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्प्ले करना है. So in that case, we'll simply write select count star from faculty. That was also an easier one. Next is increase the salary by 25% of those employees whose qualification is MCA. अब हमें क्या करना है कि हमें उनकी सैलरी को इंक्रीज करना है बाय 25% जिनकी क्वालिफिकेशन हमारी MCA है. तो MCA तो कंडीशन होगी वो, ठीक है, वेयर क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू MCA. लेकिन इंक्रीज कैसे करेंगे, डिस्प्ले नहीं करना, इंक्रीज करना है. सो अगर डिस्प्ले लिखा होता डिस्प्ले द सैलरी बाय इंक्रीजिंग इट बाय 25%, तो यू वुड हैव यूज सेलेक्ट कमांड. लेकिन यहाँ पे इंक्रीज के लिए बोला है, सेलेक्ट या लिस्ट के लिए नहीं बोला, तो यू वोंट बी यूजिंग सेलेक्ट कमांड. सो द आंसर विल बी अपडेट टेबल नेम दैट इज फैकल्टी, सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस, क्योंकि इंक्रीज करना, डिक्रीज नहीं करना. अगर हम माइनस लगाते तो डिक्रीज करते हैं. सैलरी प्लस सैलरी इंटू 25/100 वेयर क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू MCA. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डिलीट द रिकॉर्ड्स ऑफ बैचेस हुज सब्जेक्ट इज इंग्लिश. ठीक है, सो वी हैव टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ बैचेस हुज सब्जेक्ट इज इंग्लिश. तो दोनों एक ही टेबल से आ गया. हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है उन बैचेस का जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है. तो वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू इंग्लिश, लेकिन क्या करना है, डिस्प्ले तो नहीं करना है, तो सेलेक्ट नहीं होगा. ठीक है, वी हैव टू डिलीट. सो द कमांड विल बी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम दैट इज बैच वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू इंग्लिश. ठीक है, okay, let us move to the next question, 34th question. So now ClassPoint Private Limited Pune is a company that deals with development and training of softwares. They have different division, HR that is H1, उन्होंने नाम दे दिया, ट्रेनिंग को H2, sales H3, marketing H4. The layout of the Pune branch, you can see the layout H1, H2, H3, H4. ये पुणे ब्रांच का पूरे हमारे 4 divisions हैं. The management wants to connect all the division as well as the computer of each division H1, H2, H3 and H4. Distance between the divisions are as follows. तो distance को अभी हम नहीं देखते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा किस में है. So we'll see the number of computers in each division is division H1, H2. So number of computers in each division is H1 में 100, H2 में 220, H3 में 160 and H4 में 140. और सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर आपको नज़र आ रहे होंगे वो H2 के अंदर है. तो ये चीज़ आप फोकस करना, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ पे है, वहीं से आपका लेआउट वगैरह ड्रॉ होगा. ठीक है, और ज़्यादातर आंसर वहीं से शुरू होते हैं. सो सजेस्ट दी टोपोलॉजी, कई बार बोल चुका हूँ, जब भी ये वर्ड आ जाए टोपोलॉजी, जस्ट स्टार लिख के आओ, बिना देखे आपको मार्क्स मिलेंगे. देन इज, सो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं एक बार. सो द आंसर इज स्टार टोपोलॉजी. ड्रॉ द मोस्ट सुटेबल लेआउट. तो हमारा लेआउट ये था H1, H2, H3, H4. अब कौन किससे कनेक्ट करेगा, सारे जो डिविजन्स होंगे वो H2 से कनेक्टेड होंगे. तो H2 से H1, H2 से H3, H2 से H4. क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्यूटर H2 के अंदर ही हैं. Now, ClassPoint Private Limited plans to establish a new office in Dubai. अभी जो ये ब्रांचेस हैं, डिविजन्स हैं, ये सारे कहाँ पर हैं, ये हमारे पुणे में है. अब वो अपना एक नया ऑफिस बनाना चाहते हैं दुबई में. तो आउट ऑफ लैंड, मैन एंड वैन, व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क विल बी क्रिएटेड टू कनेक्ट पुणे ऑफिस विद दुबई ऑफिस. सो द आंसर विल बी वैन. ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस. Now third is suggest the division for the placement of server in Pune, H2, क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्यूटर है, रीजन देना है. Server will be placed in H2 as it has maximum number of computers. Suggest the placement of switch and hub with justification. Switch और hub कहाँ लगेगा, switch and hub will be placed in each division to connect nodes. So reason क्या देना है, to connect nodes, बस simple. Then is fifth, Miss Abhilasha working in Dubai office is creating a software for conducting programs
फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ पुणे ब्रांच विच प्रोटोकॉल, ठीक है, वुड हेल्प हर इन वॉइस ट्रांसमिशन। तो वॉइस ट्रांसमिशन के लिए एक ही हमारा प्रोटोकॉल यूज होता है, उस प्रोटोकॉल का नाम है VoIP, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। सो आकृति कीप्स द कैलोरी काउंट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स एज फॉलोज। सो उसने कैलोरी काउंट दिया हुआ, फूड इज इक्वल टू, ये 5 फूड्स हैं इसमें, ठीक है, देन इज 5 कैलोरी की वैल्यूज दी हुई है। राइट अ पाइथन कोड टू जनरेट अ बार चार्ट। तो हमें क्या बनाना है, ध्यान रखना, बार चार्ट हमें बनाना है और उस चार्ट को हमें स्पेसिफिक टाइटल और लेबल भी देना है और उसका जो नाम होगा सेव भी करना है, दैट इज calorie.png के नाम से। The correct code will be this. So first we'll write import matplotlib.pyplot as plt. Then हम एक वेरिएबल लेंगे food is equal to, and then we'll store all the food values in a list. Then calorie के अंदर हम will store all the calorie values. Then हमें bar chart बनाना था, so we wrote plt.bar और parenthesis के अंदर we write the food comma calorie. Then plt.xlabel और parenthesis के अंदर quotes में हम लोग एक specific कोई भी नाम दे सकते हैं क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, so we'll just write fruits क्योंकि वो fruits हैं x label पे. Then plt.ylabel and parenthesis के अंदर quotes के अंदर we wrote calories. Then plt.title and then again quotes के अंदर string value पास करना है, so calories and fruits लिख दिया, वो टाइटल हो गया हमारे पूरे चार्ट का। और उस जो हमने चार्ट अभी ड्रॉ कर रहे हैं उसको हमें सेव भी करना है calorie.png के नाम से। तो सेव करने के लिए द फंक्शन इज savefig, FIG। सो विल राइट plt.savefig एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर कोट्स के अंदर उस फाइल का नाम, एंड देन फाइनली plt.show, तो मैंडेटरी है, वो आपको लिखना ही पड़ेगा। एंड इसी का और पार्ट था, सो कंसिडर द फॉलोइंग डाटा, ईयर एंड देन स्टूडेंट स्ट्रेंथ, ठीक है। नाउ राइट अ पाइथन कोड टू ड्रॉ द फॉलोइंग लाइन चार्ट हैविंग टाइटल एंड लेबल्स फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस एज शोन बिलो। तो इसमें इजी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर हमें टाइटल और एक्स लेबल और वाई लेबल सब कुछ दिया हुआ है, यू कैन सी दिस, ठीक है, लेबल, वाई लेबल, दिस इज योर टाइटल, ओके, एंड देन एक्स और वाई एक्सेस का डाटा भी दिया हुआ है, ये हमारा एक्स एक्सेस का डाटा है, यू कैन सी 2019-20, ये एक्स एक्सेस का डाटा है और ये वाई एक्सेस का डाटा है। नॉर्मली जब हम लाइन और बार चार्ट बनाते हैं तो x और y एक्सेस का जो डाटा होता है वो हमारा x एक्सेस का स्पेसिफिकली डाटा जो होता है वो स्ट्रिंग वैल्यूज होनी चाहिए। सो यू कैन सी इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt और y इज इक्वल टू, इफ यू कैन सी दिस, हम लोगों ने क्या किया है, मैंने क्या किया है, मैंने इसको कोट्स में लिखा है क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यूज होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग वैल्यूज नहीं दोगे तो वो अपने हिसाब से उसको 2019.0 भी लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो स्पेसिफिकली वही शो करने के लिए एनक्लोज इट इन कोट्स, वो स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए एक्स एक्सेस की हरदम, चाहे वो लाइन चार्ट हो चाहे बार चार्ट हो। हाँ, और जो वाई एक्सेस का जो डाटा होना चाहिए वो प्योर नंबर होना चाहिए, तो वो कोट्स में नहीं होना चाहिए, ओके। और जितने एक्स एक्सेस की वैल्यूज हैं उतनी वाई एक्सेस की वैल्यूज होनी चाहिए। ये मत बोलना कि यहां से मत देखना 2019 नीचे से, ठीक है, इफ यू कैन सी माई कर्सर हियर, आई जस्ट डिलीट एवरीथिंग एंड देन यहां से मत आप कभी भी फोकस करना कि यहां पे 2019, 20, 21, ये तो ठीक है 5 वैल्यूज हैं, लेकिन अगर आप इनको देखोगे ये 5 वैल्यूज नहीं है, तो यहां से मत देखना वैल्यूज हमारा हरदम होता है ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, ये वाई एक्सेस की वैल्यू है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। सो जितनी हमारी एक्स एक्सेस की वैल्यू होंगी उतनी ही वाई एक्सेस में वैल्यूज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 5 है तो द वैल्यूज इन द लिस्ट शुड बी 5 ओनली। देन इज plt.plot, एक्स एक्सेस का हमारे वेरिएबल पास किया, कॉमा करके वाई एक्सेस का वेरिएबल पास किया, एंड देन फाइनली एक्स लेबल, और एक्स लेबल जो दिया नीचे दिया हुआ था ईयर और एरो, तो एज इट इज मैंने शो कर दिया। देन वाई लेबल, स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड एरो एज इट इज है, वही मैंने शो कर दिया। देन ईयर वाइज स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 12th, ये एज इट इज हम आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है, ईयर वाइज ये टाइटल, ठीक है। सो ये एज इट इज मैंने यहाँ पे इसको पास कर दिया है, ठीक है, यू कैन सी हियर आई हैव ऑलरेडी पास दैट इन कोट्स हियर। देन इज किस नाम से इसको सेव करना है, क्वेश्चन में दिया होगा, तो क्वेश्चन में नीचे लास्ट में दिया हुआ है stud.png के नाम से, तो यहाँ पे हमने उसको पास कर दिया, एंड लास्ट में plt.show। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंटायर क्वेश्चन पेपर। सो आप पीछे के भी जो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं 2023 का पेपर, मेन एग्जाम का पेपर, देन कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम बोल सकते हो आप, उसका सॉल्यूशन किया हुआ है, देन 2024 का सॉल्यूशन है, एंड ये हमारा 2024 का सप्लीमेंट्री एग्जाम या कंपार्टमेंट एग्जाम का जो पेपर होता है उसका सॉल्यूशन है। सो अगर आपने ये 4 अच्छी तरीके से कर लिए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप विद दीज वीडियोज यू विल बी एबल टू गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी पॉजिटिव कमेंट्स फ्रॉम यू कि हाँ सर मेरे आपकी वीडियोज देख के इतने अच्छे नंबर आए हैं। थैंक यू सो मच।